नमस्कार। आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर के विद्या मंदिर में पढ़ने वाले भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। क्लास 8 सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन फर्स्ट पार्ट 3 द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। अब मैं ये पैराग्राफ पढ़ने जा रहा हूं। इस पैराग्राफ में आप ध्यानपूर्वक ध्यान रखना और ये पहले पार्ट का तीसरा भाग शुरू होने जा रहा है, तो इसको ध्यानपूर्वक समझना। आई फोल्डेड द लेटर, आई यानी मैंने, फोल्डेड द लेटर यानी लेटर को फोल्ड किया, अगेन यानी पुनः, एंड स्लीप एंड केयरफुली और ध्यानपूर्वक, केयरफुली एंड ध्यानपूर्वक, इनटू इट्स एनवेलप। आई केप्ट अवेक ऑल नाइट, ऑल नाइट यानी पूरी रात, बाई न्यू, न्यू यानी जानना, व्हाट आई हैड टू डू, आई ड्रो इनटू ब्रिडपोर्ट जस्ट माइल्स अवे। आई आस्क्ड ए बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर बिचेज वाज। हाउस नंबर 12 turned out to be but a burned out cell, the roof gaping, the boarded up. I knocked, knocked यानी खटखटाना, at the house, house यानी घर, next door यानी अगला दरवाजा। If anyone knew the whereabouts of Mr. Macpherson, oh yes, said the old man in his slippers. He well, a lovely old lady, old यानी बुढ़ी, lady यानी महिला, he told me, उन्होंने मुझसे कहा, a bit muddled, but at her age she was entitled to be, was not 101 year old, 101 साल पुरानी। सी हैड वेंट इट कॉट फायर, फायर यानी आग। नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैड स्टार्टेड बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडलेस। सी यूज कैंडलेस रेदर देन इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज सी अवे थॉट इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव। द फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम। शी वॉज इन ए नर्सिंग होम नाउ, he told me. Burlington House on the Dorchester Road on the other side of town. I found यानी पाना, Burlington House nursing home easily enough. There were paper chains up in the hallway and lighted Christmas trees stood in the corner with a lopsided angle on top. I said I was a friend come to visit Mr. Macpherson to bring her a Christmas present. I could see through into the dining room where everyone was wearing a paper hat and singing. The matron had a hat on too and seemed happy enough to see me. She even offered me a mince pie. She walked me along the corridor. Mr. Macpherson is not, is with others, she told me. She's rather confused today, so we thought it best if she had a good rest. She has no family, you know, no one visits, so I am sure she will be only too pleased to see one visits. So I am sure she will be only too pleased to see you. She took me into a conservatory with wicker chairs and potted plants all around and left me. The old lady, बुढ़ी महिला, was sitting in a, बैठी थी, wild chair यानी कुर्सी पर, her hands folded in her lap. She had silver white hair pinned into a wispy bun. She was gazing out at the garden, garden बगीचा. Hello, I said. She turned and looked up at me vacantly. Happy Christmas, Connie. I went on. I found this. I think it is yours. As I was speaking, her eyes never left my face. I opened the tin box and gave it to her. That was the moment her eyes lit up with recognition and her face became suffused with a
sudden glow of happiness. I explained यानी व्याख्या करना, about the desk के बारे में, about how had found it, but do not think she was listening for a while. She said nothing, but stroked the letter tenderly with her fingertips. Suddenly, she reached out and looked my hand. Eyes were filled with ice. यानी आंखों में आंसू भर आए. You told me you did come home by Christmas, dearest, she said, and here you are, the best Christmas present in the world. ये दुनिया का सबसे और अनोखा उपहार था. Come closer, Jim dear, sit down. यहाँ पर एक क्रिसमस के त्योहार पर एक उपहार दिया जाता पत्र के रूप में, जिसको दुनिया का सबसे अच्छा और उपहार माना गया, गिफ्ट माना गया. I sat down beside her and she kissed my read your letter so often, Jim. Every day I hear your voice in my head. It always made were with me, and now you are can read it to me yourself. Would you to do, Jim dear? I just want to hear your voice as that so much, and then perhaps we will have. I have made you a nice Christmas cake. Around, I know how much you love Margitvan. इस प्रकार ये अपना भाग लेसन फर्स्ट का तीसरा पार्ट के कुछ पैराग्राफ थे, उसको अपन ने अभी पढ़ा. अब इस पैराग्राफ संबंधी आगे कुछ कार्य आएगा, उस कार्य को अपने को समझना है, और इसमें से इस पैराग्राफ में से उनका जहां जहां उत्तर अपने को लगता है वहां उसको ढूंढ कर और उनके उत्तर अपने को लिखने हैं. अब सबसे पहले हमारे सामने आते डिफिकल्ट वर्ड. डिफिकल्ट वर्ड का मतलब होता है कठिन शब्द. तो इस पार्ट के अंदर जो जो कठिन शब्द थे, डिफिकल्ट वर्ड थे, वो हमारे सामने है. जैसे बर्न, BURNED, बर्न यानी जला दिया. बोर्डेड, BOARDED, बोर्डेड यानी ऊपर चढ़ा. मडल हेडेड, MUDDLEHEADED, मडल हैंडेड यानी कीचड़ का नेतृत्व किया. लिटअप, LITUP, लिटअप यानी कम होना. सफ्यूज्ड, SUFFUSED, सफ्यूज्ड यानी फैलाना. अवेक, AWAKE, अवेक, अवेक यानी जागना. ये अपने कुछ कठिन शब्द जो इस पार्ट के अंदर डिफिकल्ट वर्ड के रूप में आए, उनको अपन ने लिया. तो इसको भी अपनी कॉपी के अंदर डिफिकल्ट वर्ड देकर और इसको अपनी कॉपी में उतारना. अब आगे आती है ग्रामर. ग्रामर में हमारे सामने आती है वर्ब. वर्ब में फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म. आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड. कैच, कॉट, कॉट. से, सेड, सेड. लुक, लुक्ड, लुक्ड. फाइंड, फाउंड, फाउंड. अब इसको अपन गीत के माध्यम से भी गा सकते हैं. आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड. आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड. Listen to the music. Ask, asked, asked. Catch, caught, caught. Catch, caught, caught. Listen to the music. Catch, caught, caught. Say, said, said. Say, said, said. Listen to the music. Say, said, said. Look, look, look. Look, look, look. Listen to the music. Look, look, look. Find, found, found. Find, found, found. Listen to the music. Find, found, found. ये अपने वर्ब है. इस प्रकार दूसरे भी वर्ब है, उसको भी अपने इस प्रकार से याद कर सकते हैं, तो अपने को याद होने में सरलता रहेगी और जल्दी ही वर्ब हमको याद हो जाएगी. अब अगली बात आती है नए शब्द बनाना. एडिंग LY मेकिंग न्यू वर्ड, यानी शब्द के एडिंग LY मेकिंग न्यू वर्ड, यानी शब्द के साथ में LY जोड़कर नया शब्द तैयार करना. जैसे टेंडर, TNDER, टेंडर के साथ में अपन LY को जोड़ा तो टेंडरली शब्द बन गया. सडन, SUDDENLY, सडन के साथ में LY जोड़ा तो सडनली बन गया. लवली,
LOVE, उसके साथ में LY जोड़ा तो लवली बन गया। केयरफुल प्लस LY तो केयरफुली शब्द बन गया, अर्थात नए शब्द का निर्माण करना। अगली बात आती है राइट द मिस स्पेल्ड वर्ड, अर्थात शब्द उल्ट पुल्ट है उसको सही करके और व्यवस्थित क्रम अनुसार बनाकर और सार्थक शब्द उसको बनाना। जैसे LAPTN तो बन गया PLANT, GINHT तो बन गया NIGHT, EATR तो बन गया TEAR, PHEARSP तो बन गया PERHAPS। ऐसे अपने मिस स्पेल्ड शब्द यानी अक्षर दाएं बाएं थे उसको सही करके और सही स्पेलिंग का निर्माण करना। अगली बात आती है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब इन द ब्रैकेट, यानी कोष्टक में शब्द है, अपने को सब वाक्य को देखकर पता लगाना कि इसके अंदर कौन सी वर्ब है वो आएगी। जैसे माई लिटल सिस्टर इज वेरी नोटी व्हेन सी खालिस्तान कम बैक। अब अपने को पता करके इसके अंदर कम के साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी उसको पता करना। फ्रॉम स्कूल यस्टरडे, अब यस्टरडे शब्द आए तो पास्ट टेंस का पता करना और टीयर को खालिस्तान में बढ़ना, इसको कहते हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ये आप खुद को अपनी कॉपी के अंदर करना है। अब अपने होमवर्क संबंधी कार्य, यानी हमको अपने कॉपी के अंदर पैराग्राफ संबंधी पार्ट संबंधी होमवर्क के अंदर क्या क्या करना। सबसे पहले है राइट द आंसर दीज क्वेश्चन, प्रश्नों के उत्तर देना। वाई डिड द ऑदर गो टू ब्रिडपोर्ट, इसका उत्तर अपने को पैराग्राफ में से देखकर लिखना। हाउ ओल्ड वाज मिस्टर मैकपर्सन नाउ, यानी मैकपर्सन की फिलहाल उम्र क्या थी या कितने वर्ष का, इसका उत्तर देखकर लिखना। हु डिड कनी मैकपर्सन थिंक हर विजिटर वाज, इस प्रकार इन तीन प्रश्नों के उत्तर हमको इसमें से देखकर लिखना है। अब अगला प्रश्न है मेकिंग 5 न्यू वर्ड्स, 5 नए शब्द। जैसे अपन अभी LY जोड़कर शब्द बनाए थे ऐसे अपने को 5 शब्द है वो नए 5 शब्द बनाने हैं। ये हमारे गृह कार्य के रूप में रहेगा और इसको देखकर जो जो ये बातें स्लाइड के अंदर आई है इसको भी अपनी कॉपी के अंदर पूरी की पूरी, डिफिकल्ट वर्ड है डिफिकल्ट वर्डों को लिखना है, मिस स्पेल्ड का सवाल है उसको भी लिखना है और वर्ब का सवाल है उसको भी लिखना है और करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब उसको भी अपने पैराग्राफ में देखकर इसका उत्तर लिखना है। और ये जो 3 प्रश्न गृह कार्य दिए इनके भी उत्तर अपने को देखकर इस पैराग्राफ में से और अपनी कॉपी के अंदर लिखना है। इस प्रकार इसको करना है। और ये मेकिंग न्यू 5 वर्ड्स है इसको भी अपनी इस पाठ में से और देखकर और LY जुड़े ऐसे 5 शब्दों का चयन हमको करना है। जय हिंद जय भारत।